race? Yes. Like there is a certain distance and it is covered not by one person. It is covered by a combination of 3, 4, 5 people, right? So there is a certain length which is run by one runner, right? And then there is one point where that runner needs to pass the baton, that small stick that he carries in his hand. He needs to pass that baton to another person, another runner who belongs to his team, right? Then that second person runs a certain distance and he does the same. At a point, he hands the baton over to someone else who carries it forward to the next section, right? So there are around 3 or 4 or 5 people who complete the whole race, right? They take their turns, okay? So in a relay race, what they're carrying in their hands is a small stick that's called a baton, okay? Pass the baton means, so from that relay race, this phrase came, pass the baton. It means now I hand over the responsibility, right? Hand over the responsibility. Hand over means sopna, give. Hand down, hand down a punishment, right? He was handed down a punishment. The court handed him down a punishment. Handed him down a punishment means कोर्ट ने उनको कुछ दंड सुनाया. टेक ओवर, व्हाट इज टेक ओवर? टेक control, right? So one company takes over the other company. So it means one company buys or takes control of the other company. From here, my friend Mr. Ravi will take over. Like I am teaching you and then I'm leaving, right? I stop teaching. And then I ask someone else, like I ask my friend to come and teach. So I'll tell this, that now my friend Ravi will take over from here. He will take over from here means now he'll be the in charge, or he'll be the person who will take control of the affairs, right? Overtake, what is overtake? ओवरटेक का मतलब पीछे कर देना. गो अहेड ऑफ, किसी से आगे निकल जाना. वन कार ओवरटेक्स द अदर वन. So when you are overtaking a car, you are going ahead of that car. Virat Kohli has overtaken Sachin Tendulkar. It means he has gone ahead of Sachin Tendulkar in certain terms, right? Drop names. Do you know this is an idiom? What does it mean? No, when you are dropping names, actually you are taking names of some influential people just to show off that you are familiar or you are related to that person, so that the other person may or would take you seriously, right? Do you understand what I'm saying? So sometimes you are taking name of some big people, some influential people, just to, and telling the other person that you are related to that person or you know that person, so that the other person may take you or would take you seriously. So that's like, see, don't drop names. It won't work with me. What does it mean? Don't drop names. It won't work with me. बड़े बड़े लोगों का नाम ना लो, मेरे से काम नहीं, मेरे सामने सब चलेगा नहीं. Okay. So flying colors. State of victory. Pass with flying. Pass with flying colors means you pass with very good grades, with a very good grade, right?
or so take wind out of someone's sail. What is sail? Sail is no. You see, there is a structure on boats and ships in which there are two two pieces of wood, right? And there is a cloth which is attached to these two pillars, right? And what is the purpose of having this structure? See, it gives a big surface area for the wind to come and strike. So when the wind comes and strikes that big area, you know, the boat is propelled with that force of wind, right? That particular structure is called sail. So when I say take wind out of someone's sail, what does it mean? Just guess. No. If someone is very confident and you say something and then his confidence goes away, right? Or when someone is very angry and when you say something and that person becomes normal. You are taking wind out of that person's sail. बहुत उफनाया हुआ है कॉन्फिडेंस या एंगर में, तो उसको क्या कर रहे हैं आप? कुछ ऐसा कह दिए खुश हो गया, है ना? टेक wind out of someone's sail. What is the meaning of like the wind? See, you need to know wind. Wind is noun. Wind is pawan. Right? And then this is wind. Wind means, repeat now. Anna, you wind a watch. You wind a watch. You wind up a watch. Why? Because चाबी नहीं भरेंगे तो घड़ी नहीं चलेगी, right? Wind. So I was winding the thread. मैं धागे को क्या कर रहा था? लपेट रहा था, right? Wind up and wind down. Sometimes when you are trying to move the window glass in your car up, you are trying to wind it up, and you are trying to bring that glass pane down, you're trying to wind it down. So it's not wind, it's wind up and wind down. Okay, so when I say like the wind, it means very quickly. In the wind means कुछ है हवा में कुछ है, राइट? जैसे कहते हैं ना कि दिवाली का समय लगने लगा है ना? सो दिवाली मूड इज इन द विंड, राइट? फियर इज इन द विंड मतलब what is the difference between air and wind? Wind blows, air doesn't blow. It might blow, it may not blow, right? Only when the air blows it becomes wind. जब तक बहेगा नहीं तब तक वो विंड नहीं कहलाएगा, है कि नहीं? What is the meaning of vanish? Disappear, गायब हो जाना, है ना? My as soon as I took हनुमान's name, my fears vanished. जैसे ही हनुमान जी का नाम लिया, है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे. Vanished, disappear. There is a film Mr. India. In that film the character Mr. India, he vanishes, he disappears, right? What is the meaning of once in a blue moon? Very rarely.
वो कभी घर से नहीं निकलता है. He never comes out of his house. So you'll see him outside his house once in a blue moon. Once in a blue moon means very rarely. You'll see him outside his house, out of his house. Once in a blue moon means very rarely आप उसको देखेंगे, है ना. A bolt from the blue. What does it mean? A sudden news which is normally negative, unpleasant, right? So you get this news that someone very close to you died. You were not expecting. So some unpleasant news which is unexpected, sudden. For that, you can use this noun phrase. It's an idiomatic noun phrase. A bolt from the, right? Abruptly. अचानक से. He left the meeting abruptly. Rupt means break. Rupt relates to break. Like rupture. Rupture means darar, patan. This is noun. And then there is another word, rapture. Rapture is anand. Rapturous. Look at this word. Look up this word. Look up this word in the dictionary. Rapturous. Rapturous crowd. A rapturous crowd. What does it mean? Disrupt. अब का मतलब क्या होता है? अवे. रप्ट का मतलब क्या होता है? ब्रेक. Break away suddenly. Abrupt. So what is the meaning of disrupt? व्यवधान उत्पन्न करना, बाधा. Disruption is व्यवधान. So when the parliament is meeting and they are transacting their business, and suddenly someone in the parliament comes and does something which stops them from doing whatever they were doing. So this is actually an example of disrupting the proceedings. Okay, this is disruption. What is mirth? Mirthful. So the same way, this is Anandit, Harshit. Right? Anand, Harsh. Make merry. मजा, आनंद करना. Right? Merriment, आनंद, मजा. See, sloth
एंड स्लॉथफुल। स्लॉथ एक जानवर होता है, कैसा होता है? भालू जैसा, गैंडा जैसा। हम्म, बहुत सुस्त रहता है वो, सुस्त, स्लॉथफुल, सुस्ती। स्लॉथ सुस्ती होता है, स्लॉथफुल क्या होता है? सुस्त। अगर एक आदमी शर्क कर रहा है, काम चोरी करना, शर्कर, काम चोर, है ना? इंडोलेंट, डोल मतलब क्या होता है? कष्ट, नॉट एंट वाला, कष्ट न लेने वाला, इंडोलेंट, है ना? तो जो कोई कष्ट नहीं उठाना चाहता है, लेजी, देहचोर होता है। कब लड्डू? हैं? इंडोलेंट, डोलफुल, दुख भरा, देखो डोलफुल। एक फ्रेज बताओ। अ डोलफुल एक्सप्रेशन, फेस, सॉन्ग, मेरा जीवन कोरा है ना? आ गया ना वही? हाँ। हम्म, कंडोलेंस होता है ना? कौन मीन्स टुगेदर, डोल मतलब दुख प्रकट करना। कोई मर गया, मुझे भी दुख है, भगवान शांति देने को, हौसला रखिए। कंडोल मतलब सांत्वना, नहीं सांत्वना, सांत्वना देना। कौन है ये सांत्वना? कंडोलेंस, सांत्वना, है ना? डोल, अलग है। इन डोलड्रम्स होता है, देखो तो जरा, क्या लिखा है? पढ़े हो? देखो जरा, इन डोलड्रम्स ईडीएम होता है। इन द डोलड्रम्स का मतलब? हाँ? दो इधर। डिस्पाइट दिस मेजर्स द इकोनॉमी रिमेन्स इन लैक ऑफ एक्टिविटी और इम्प्रूवमेंट। दो चीजें, इसके दो मतलब हैं। एक तो क्या है, क्या है? दुखी। और दूसरा अर्थ क्या है? अक्रियाशील, अक्रियाशील। दुकानदारी चल नहीं रही है। द बिजनेस इज इन द डोलड्रम्स, द बिजनेस इज इन द डोलड्रम्स, है ना? शोक प्रकट करना, हाँ। ये कंसोल थोड़े लिखे हैं, अच्छा कंडोल लिखे हैं ना। तो कंडोल मतलब क्या होता है? शोक प्रकट करना, सही बात है, शोक प्रकट करना। ये हो जाएगा शोक। कैसा शोक प्रकट किया गया, है ना? वो वाला शोक, कंडोलेंस। वो कंसोल होता है, ठीक है ना? रिडोलेंट कोई वर्ड होता है क्या? री मतलब अगेन नहीं होता होगा, कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा। होता है क्या? क्या बन रहा है? हाँ, री मतलब अगेन। कोई दुख वाली बात फिर से आपको याद आ गई है ना? एक एग्जांपल फ्रेज बताया करो। दो जल्दी, दो जल्दी, दो, तुम बहुत देर लगाती हो। एन एटमॉस्फेयर रिडोलेंट ऑफ द सी एंड शिप्स, स्मेलिंग स्ट्रांगली ऑफ द थिंग मेंशन।
बू किसी चीज की याद दिलाने वाला, याद दिलाने, ऐसा घुसे, आ कहीं तो गुड़ बन रहा है। दिस स्मेल इज रिडोलेंट ऑफ जैगरी। दिस स्मेल, दिस डिस्टिंक्ट स्मेल, डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बाकियों से अलग, अपना खुद का, यूनिक। तो जो यूनिक या डिफरेंट या डिस्टिंक्ट जो स्मेल है, दिस डिस्टिंक्ट स्मेल इज रिडोलेंट ऑफ जैगरी, फ्रेश जैगरी, है ना। वो किसी चीज की याद दिलाने वाला, या किसी चीज को याद दिलाने वाला। वही तो मेरे दिमाग में आया। री मतलब अगेन, डोल मतलब दुख, एंड दिस सॉन्ग इज रिडोलेंट। रिडोलेंट का इस्तेमाल कैसे होता है ये जानना जरूरी है। रिडोलेंट ऑफ माई हार्ड हार्ड चाइल्डहुड। हार्ड चाइल्डहुड क्या होता है? कठिनाई से भरा चाइल्डहुड। दिस सॉन्ग इज रिडोलेंट ऑफ माई हार्ड चाइल्डहुड। समझ नहीं आ रहा है? मर्थफुल, मर्थ, आनंद, है ना। खींचो। इंडोलेंस क्या होगा? इंडोलेंस, हम्म, दिमाग लगाओ ना भाई। इन मतलब नॉट, डोल मतलब दुख, एंस मतलब स्थिति, दुख ना लेने की स्थिति, आलस्य। क्या होगा? इंडोलेंस नाउन हो जाएगा, लेजीनेस, सुस्ती, आलस्य। दिस मशीन्स, these machines are lying idle, मतलब सुस्त, हम्म, काम विहीन है, आइडल है ना। आइडल मतलब निकम्मा। देखो तो जरा आइडल की एंट्री, आदमी के लिए इस्तेमाल जब होगा तो, निकम्मा किया है दिल ने। दो, निकम्मा क्यों कहते हैं इसको समझना आज जरूरी है। हाँ, नॉट वर्किंग हार्ड, नॉट इन यूज, विदाउट वर्क, यूजलेस। वाह, देख रहे हो कितना मतलब है। हम्म, निकम्मा या आलसी, ये किसके लिए बोलोगे? आदमी के लिए। और आइडल मतलब होता है यूजलेस, बेकार का, निरर्थक। निरर्थक इसके लिए, बात के लिए। आइडल मशीन के लिए क्या बोलोगे? नॉट इन यूज, नॉट इन यूज, यूज नहीं हो रहा है, ये मशीन वगैरह के लिए बोल दोगे, है ना। आइडल टॉक, आई डोंट इंडल्ज इन सच आइडल टॉक। इंडल्ज मतलब कोई गलत चीज। इंडल्जेंस क्या होता है? मौज मस्ती, है ना। आओ लड्डू, समझ में आता है? हाँ। स्लग मतलब क्या होता है? घोंघा, ऐंठा। स्लगिश, वेरी स्लो, बहुत धीमा। स्लगिश,
sluggish sale, sluggish worker, sluggish traffic. ट्रैफिक होगा तो ए नहीं होगा, है ना? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन है ना. स्लगिश इकोनॉमी है कि नहीं? और टर्न कोट कौन होता है? कोट बदल लिया. इंडिया का जर्सी पहना हुआ था, पाकिस्तान का पहन लिया, क्या हो गया वो? टर्न कोट. चल बदलू, है ना? कोट का मतलब क्या होता है? परत चढ़ाना. हम्म. He always quoted its scolding. कोटेड इन होगा कि विथ होगा? देखो तो, दोनों होगा. He always quoted its scolding with या in. He always quoted its scolding with या in. पन. पन क्या होता है? इसका क्या मतलब है? मतलब कैसे डांटते थे? डांटते थे और ज्यादा काम नहीं करना चाहिए. कोचिंग इससे बहुत आगे बढ़ जाएगा. कोचिंग बहुत आगे बढ़ने से क्या होगा? हम लोगों के पास रिसोर्सेज ज्यादा आ जाएंगे, है ना? और ये सब खराब बात है. कबीर कह गए हैं, है ना? तो मतलब उल्टा डांट रहे ना, है ना? कोटेड, कोटेड विथ सुगर, चीनी उसके ऊपर, है ना? कट योर कोट अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ. क्लॉथ होगा. कट योर कोट अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ. अब कोट स्लीवलेस रहेगा कि हाफ स्लीव रहेगा कि फुल स्लीव रहेगा, डिपेंड करता है कितना कपड़ा है. तेते पांव पसारिए, जेते लांबी सौर. समझ रहा ना? समझ रहा ना? लिव विद इन योर मीन्स. मीन्स मतलब क्या होता है? कमाई, संसाधन. अब मीन्स यहाँ हमेशा क्या होता है? प्लूरल. एक होता है मीन्स जो होता है सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है. यहाँ मीन्स का मतलब क्या होता है? माध्यम, साधन. और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना? आवागमन का एक साधन, जरिया, माध्यम, है ना? जरा उसमें आइएगा, एक आपको शेयर किए फोटो. I like to sweat it out. After a stressful day. Sweat it out का मतलब क्या होता है? एक्सरसाइज हार्ड, एक्सरसाइज हार्ड, स्वेट इट आउट, है ना?
So after a stressful day, I like to hit the gym. Hit the gym and sweat it out. Stressful day. Stress मतलब होता है बल, तनाव भी होता है. स्ट्रेस मतलब बल मतलब एम्फेसिस, है ना. स्ट्रेस मतलब क्या होता है? बल देना, एम्फेसाइज. देखो स्ट्रेस्ड का, स्ट्रेस्ड, द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन फॉर स्टूडेंट्स, है ना. देखो तो स्ट्रेस की एंट्री वर्ब में, ऑन है कि नहीं है? हैं? वर्ब देख रहे हो ना? स्ट्रेस समथिंग है ना. हाँ, तो ही स्ट्रेस्ड मतलब ही एम्फेसाइज्ड, उन्होंने जोर दिया किस चीज पर? द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन फॉर स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है, इस चीज को उन्होंने क्या किया? जोर दिया. स्ट्रेन मतलब क्या होता है? खिंचाव या तनाव, है ना. स्ट्रेन्यूअस, स्ट्रेन्यूअस वर्क मतलब कठिन काम, एडजेक्टिव है ना. स्ट्रेंड रिलेशनशिप्स, स्ट्रेंड रिलेशंस, कैसे रिश्ते हैं भाई? तनावपूर्ण. स्ट्रेंड रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना. स्ट्रेंड है ना. इज स्ट्रेंज्ड, इज स्ट्रेंज्ड डॉटर, क्या मतलब है? बेटी अलग हो गई है, बाप अलग हो गया है. वो बेटी नहीं मानती, वो बाप नहीं मानता, है ना. समझ में आ रहा ना. स्ट्रेंज्ड, इज स्ट्रेंज्ड डॉटर. अजनबी हो गए दोनों, रिश्ता खत्म, रिश्ता खत्म. वाला, वाली बेटी, कोई रिश्ता नहीं है इससे मेरा. समझ में आ रहा है ना. strenuous, he was working strenuously, मतलब बहुत मेहनत से काम कर रहा था. एडवर्ब हो गया ना strenuously. अगला क्या था? you will not you will not sweat, हाँ ना. not sweat, ब्लैंक नहीं है क्या? तो कहाँ बोली ब्लैंक? अच्छा, will break no sweat, break, break no sweat क्या मतलब होता है? कठिन परिश्रम ना करना. नो है ना. ब्रेक स्वेट मतलब क्या क्या होता है? कल क्या बताए थे एक चीज? स्वेट ब्लड बोले थे ना, खून पसीना एक करना. अलग था. ब्रेक नो स्वेट, पसीने नहीं आया कोई तो काम क्या किया? कुछ नहीं किया आपने, है ना. आगे वो पढ़ो. सोल्डर्स की सोल्जर्स, सोल्जर्स. कीप, माउंट, स्टैंड, गार्ड, ये होता है इडियम. निगरानी करना,
कीप अ विजिल, निगरानी करना, है कि नहीं? माउंट होता है, माउंट, माउंट मतलब क्या होता है? चढ़ाना। कीप गार्ड, माउंट गार्ड, स्टैंड गार्ड। देयर वर 3 रॉबर्स, 3 डकैत थे। while one of them stood guard at the gate, the other 2 went inside the house and uh, wiped the whole house of everything valuable, everything valuable, जो भी valuable था सब समेट ले गए, है ना? मेरी बात समझ में आई? There were 3 robbers, while one of them stood guard at the gate, the other 2 went inside the house and they wiped the whole house of everything valuable. समझ रहे ना? विजिलेंट कौन होगा भाई? चौकन्ना, एडजेक्टिव है ना? विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है ना, सतर्क। विजिलेंस डिपार्टमेंट का काम क्या है? विजिलेंस मतलब क्या होता है? सतर्कता, है कि नहीं? एम्बल मतलब क्या होता है बताना? एम्बल मतलब वॉक, कैसा? धीरे धीरे, मौज से, है ना? मौज से चलना, एम्बल, है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? अब जैसे सर्कम मतलब क्या होता है? सर्कम मतलब गोल, चारों ओर, हाँ? स्पेक्ट, चारों तरफ जो स्पेक्ट करे, दिखता रहे, क्या है? सर्कम स्पेक्ट कौन है? सतर्क, चौकन्ना। सर्कमस्पेक्शन सतर्कता, निगरानी। कल बताए थे ना, व्हील मतलब क्या होता है? व्हील, घूंघट, पर्दा ना। सर मतलब ऊपर, व्हील मतलब पर्दा। सर्विलांस डबल एल होता है ना। सर्विलांस मतलब क्या होता है? ऊपर से आपके ऊपर निगरानी है, कवर है, है ना? सर्विलांस होता है। यू आर इन सर्विलांस होता है ना, कि अंडर सर्विलांस। देखो जरा सर्विलांस की एंट्री में दोनों हो जाएगा क्या? अंडर सर्विलेंस। सर्विलांस नहीं होता, सर्विलेंस होता है। सर्विलेंस, सर्विलेंस, है ना? आगे है सर्कमस्पेक्शन हो गया। पेराम्बुलेट क्या होगा जरा बताना? पेराम्बुलेट, उड़ीसा में एक बना है अभी, पेराम्बुलेशन पाथ, पेराम्बुलेशन सर्किट। पेराम्बुलेट, चारों ओर घूमना, चारों ओर किसी के चलना। परिक्रमा करना, क्या करना? पैदल परिक्रमा, पैदल परिक्रमा करना। जगन्नाथ मंदिर के चारों ओर उड़ीसा गवर्नमेंट ने बताया ना, पेराम्बुलेशन सर्किट। तो पेराम्बुलेशन क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा ना। पेराम्बुलेट से ही क्या बनेगा? पेराम्बुलेशन बन जाएगा। पेराम्बुलेशन क्या हो जाएगा? परिक्रमा हो जाएगा, है ना? कैसा परिक्रमा? पैदल परिक्रमा, चारों तरफ ही होता है, परि मतलब चारों ओर।
पेराम्बुलेशन समझ में आ रहा है ना? एक तुम लोगों ने देखा होगा, देर आर सर्टेन प्लेसेस वेयर देर इज अ perambulator, like it's like merry-go-round. No, merry-go-round is something different. merry-go-round is that big swing perhaps. perambulator ही होता है ना जिसको ऐसे घुमा के अंदर घुसते हैं. Like if you want to enter a place, there is a small structure which you need to spin. If you turn, it makes some space for you to go and inside, you know. perambulator होता है, देखो तो स्पेलिंग. पेरी मतलब होता है चारों ओर. हाँ, टर्न स्टाइल, सही बात है. दैट्स कॉल्ड टर्न स्टाइल. टर्न स्टाइल होता है ना जैसे ऐसे घुमा के तब अंदर जाना होता है. यहाँ पे लगा हुआ है ना पार्क में, हनुमान मंदिर में भी लगा हुआ था, है ना, घुमा के जाने के लिए. टर्न स्टाइल. कैसा लिखें इसको? घुमाने वाला गेट, है ना, टर्न स्टाइल. डिस्ट्रेस कॉल क्या होता है? डिस्ट्रेस मतलब क्या होता है? डिस्ट्रेस मतलब बहुत आपदा. डिस्ट्रेस कॉल आ रहा है मतलब बचाओ, मैं खत्म, मतलब लोग घेर घेर लिए हैं, मैं जाने वाला हूं. डिस्ट्रेस, आपदा, आफत. इन डिस्ट्रेस, इन डिस्ट्रेस मतलब विपदा में. है ना, इन डिस्ट्रेस. डैमसेल इन डिस्ट्रेस एक इडियम होता है. डैमसेल का स्पेलिंग डैमसेल इन डिस्ट्रेस क्या मतलब है? हम्म हम्म देखो इसकी एंट्री, वही बेसहारा है, असहाय महिला. डैमसेल इन डिस्ट्रेस. डैमसेल मतलब होता है अ यंग वुमन. तुम छोटे हो, क्या बोलेंगे इसको? तुम्हारी उम्र कम है. यू आर यंग, यू आर यंग, उम्र कम है. कैच समवन ऑफ गार्ड. ऑफ गार्ड का मतलब क्या है? आप तैयार नहीं थे, अचानक पकड़ लिए गए उसमें. समझ में क्या रहा है? कोई आदमी पहले से ही तैयार रहे तो उसको फंसाना बहुत मुश्किल है. ऑफ गार्ड रहेगा, वो डबल एफ, ऑफ. ऑफ गार्ड मतलब अपना, हाँ. इफ यू हैव ड्रॉप्ड योर गार्ड, इफ यू आर ऑफ गार्ड, इफ यू आर नॉट कीपिंग ऑन योर गार्ड, इसका मतलब आप क्या हैं? तैयार नहीं है. लूज योर गार्ड, नॉट कीपिंग ऑन द गार्ड, या बीइंग ऑफ गार्ड, इसका मतलब आप तैयार नहीं है. तो वही, तो कैच समवन ऑफ गार्ड का मतलब होता है कि अचानक आप क्या हो जाते हैं? सरप्राइज हो जाते हैं और आपसे वो आंसर निकल जाता है, या वो आप कर देते हैं जो आप करना नहीं चाहते थे. जैसे आप कहते हैं कि लेट योर गार्ड गो. लेट मतलब एलईटी, लेट मतलब अलाउ. लेट योर गार्ड गो मतलब, लेट योर गार्ड ऑफ मतलब वो डबल एफ, ऑफ. लेट योर गार्ड ऑफ मतलब आप क्या होता है? ढीला पड़ जाते हैं. आप अपना सतर्कता को क्या करते हैं? चौकन्नापन को कम कर देते हैं. आगे नहीं, इसका क्या है? दो सेंटेंस हो. इस सेंटेंस को पूरा पढ़ना है. द लॉयर्स अपरेंटली इनोसेंट क्वेश्चन. उस वकील का अपरेंटली, तो ऊपर से देखने में लग रहा था इनोसेंट क्वेश्चन, बड़ा सरल सा सवाल, was designed, उसको डिजाइन किया गया था टू कैच द विटनेस, ताकि गवाह को पकड़ लिया जाए ऑफ गार्ड. ऑफ गार्ड मतलब तैयार ही नहीं था उस क्वेश्चन का आंसर के लिए, उससे सत्य निकल आएगा सामने. सेंट्री क्या होता है? संतरी होता है. गेट पे जो रखवाली करते, दरवान, क्या कहते हैं? दरवान, गेट कीपर. तो अ सेंट्री ऑन गार्ड एट द मेन एंट्रेंस पे वाज शॉट डेड बाय द रॉबर्स. A sentry keeping, yeah, standing
ऑन, तीनों हो सकता है, गार्ड एट द मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस पे, एंट्रेंस मतलब घुसने का द्वार है ना, वॉज शॉट डेड, मृत कर दिया गया गोली मार के, बाय द रॉबर्स। रॉबर्स कौन होते हैं? लुटेरे, डकैत। पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब क्या होता है? गरीबी। रॉब्ड हिम ऑफ हिज चाइल्डहुड, क्या मतलब है? वंचित कर दिया उसके बचपने से, बचपन में ही क्या हो गया वो, बड़ा हो गया, जिम्मेदारी उठाने लगा अपने परिवार की, है ना। तो जो बच्चा एक शैतानी करता है वो नहीं करने लगा, है ना, नहीं किया। आगे, हाँ, मार्क मतलब क्या होता है? मार्क मतलब निशानी। मेक अ मार्क इन दिस फील्ड, आई वॉन्ट टू मेक अ मार्क इन दिस फील्ड, इस क्षेत्र में मैं अपना नाम, निशानी छोड़ना चाहता हूँ, नाम बनाना चाहता हूँ। समझ में क्या आ रहा है? हम्म। कोई चीज अगर नोटिसेबल है मतलब इजी टू सी, आराम से देख सकते हैं ना, नोटिस कर सकते हैं। डिस्टिंक्ट है मतलब अलग है, डिफरेंट, क्या है वो? डिफरेंट, यूनिक है। मार्क्ड मतलब भी क्या है? अलग सा, अलग सा। जैसे काफी, अच्छा, खासा, या स्पष्ट, ये इसका क्या है मतलब है। जैसे अ मार्क्ड इंप्रूवमेंट मतलब, या अ मार्क्ड डिफरेंस मतलब क्या है? अच्छा खासा डिफरेंस है ना, या स्पष्ट अंतर है, या अच्छा खासा सुधार हुआ है। मार्क्ड मतलब दिख रहा है वो, है ना। जैसे अ मार्क्ड इफेक्ट, बहुत ज्यादा अच्छा खासा प्रभाव, लिखा होगा ना नीचे, अ मार्क्ड इफेक्ट ऑन सेल्स, बिक्री पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ा इसका, है ना। इफेक्ट नाउन होता है ना, अफेक्ट मतलब क्या होता है? प्रभावित करना, वर्ब होता है। और इफेक्ट मतलब भी वर्ब होता है। इफेक्ट मतलब क्या होता है? नहीं नहीं, इफेक्ट मतलब करना, और इफेक्ट जो होता है वो नाउन होता है। इफेक्ट मतलब प्रभाव। जैसे दीज चेंजेस विल बी इफेक्टेड सून, क्या मतलब है? इन परिवर्तनों को किया जाएगा, है ना। मूर्त रूप देना, अंजाम देना, क्या देना? अंजाम देना। इन परिवर्तनों को अंजाम दिया जाएगा जल्दी, है ना। बात समझ में क्या आ रहा है? और इधर क्या था नीचे? हाँ, अ मार्क्ड, अ मार्क्ड, अ मार्क्ड इंक्रीज, काफी अच्छी खासी प्रगति, बढ़ोतरी हुई इन प्रॉफिट्स, लाभ में। हम्म। हम्म, हैं? क्या कह रहे हो? हाँ, कीप, कीप अप द गार्ड है ना, कीप अप, कीप अप द गार्ड, कीप अप द गार्ड मतलब हो गया चौकन्ना रहना, है ना,
सतर्क रहना है कि नहीं, सतर्क रहना है ना। और दूसरा क्या है, ड्रॉप द गार्ड, मतलब क्या हो जाना, सतर्कता ढीला कर देना। व्हेन यू ड्रॉप द गार्ड समवन किल्स यू, कोई आपको क्या कर देता है, मार डालता है कि नहीं। एक लुकआउट होता है ना, लुकआउट क्या होता है? लुकआउट होता है नजर या निगरानी, खोज, कहां गया कहां गया, ढूंढो उसको। लुकआउट नोटिस, आपके खिलाफ अगर लुकआउट नोटिस इशू हो गया तो पुलिस ढूंढेगी अब आपको कहां गए, है ना। लुकआउट टावर भी होता है ना, क्या होता है, लुकआउट टावर्स। अभी बनाए जाएंगे लुकआउट टावर्स मेले में, उस पर खड़ा हो जाएगा पुलिस वाला निगरानी करने के लिए, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी में तो नहीं है ना, है कि नहीं। फ्रॉम लुकआउट टावर्स पुलिस गार्ड्स look for suspicious people, संदिग्ध लोगों को क्या करते हैं, वो तलाशते हैं, देखते हैं। समझ में आ क्या रहा है, बताओ। मर्थ मतलब क्या होता है, मर्थ, रुक जाओ रुको इसको बता। आनंदित होना, खुश होना, मर्थ नाउन है, तो होना कैसे होगा, आनंद हर्ष नाउन है ना, यही तो डिफ्रेंशिएट करना है। मर्थफुल मतलब आनंद, आनंदित नहीं, हाँ आनंददायक। मर्थफुल मतलब आनंददायक, डोलफुल मतलब दुखदायक, है ना। इंडोलेंट पीपल आर, नो शर्कर्स आर इंडोलेंट, शर्कर्स आर इंडोलेंट। कामचोर लोग क्या होते हैं, इंडोलेंट होते हैं, काम नहीं करना चाहते, जी चोर होते हैं। और भी कुछ है क्या उसमें, हाँ। वाइंड डाउन मतलब क्या होता है, हैं, रिलैक्स। वाइंड डाउन मतलब क्या होता है, धीरे धीरे किसी चीज को अंत कर देना। अच्छा, वाइंड अप मतलब क्या होता है, खत्म करना, कोई एक्टिविटी, एक्टिविटी बिजनेस प्रोजेक्ट। तो देखो यहाँ पे वाइंड डाउन मतलब भी और वाइंड अप दोनों एक जैसे हो गए कि नहीं हो गए, हैं। वाइंड अप अ बिजनेस या वाइंड डाउन अ बिजनेस दोनों मतलब सेम ही है। वाइंड डाउन अ बिजनेस मतलब धीरे धीरे करके बंद करना, वाइंड अप मतलब बंद कर देना, धीरे चाहे तेज, उससे मतलब नहीं, है ना। क्या लिखा था सेंटेंस, कुछ नहीं, खत्म। हाँ क्या होगा बताओ, ही वाउंड डाउन भी हो सकता है, ही वाउंड अप भी हो सकता है। ही वाउंड अप द बिजनेस, क्या हो जाएगा, लास्ट ईयर, पिछले साल उसने बिजनेस अपना क्या कर दिया, बंद कर दिया। पर डायम क्या होता है, पर डायम नहीं पढ़ते हैं, पर डीएम, पर डीएम मतलब क्या होता है, पर डीएम होता है फॉरेन अलाउंस, मतलब अलाउंस है एक तरह का। आप कहीं जाके रह रहे हैं तो वहां खाने पीने में खर्चा हो रहा है ना महंगाई की वजह से, उसको क्या बोलते हैं, पर डीएम बोलते हैं। यू विल गेट, टू हेल्प विथ, टू हेल्प विथ, इसका अर्थ समझ में आया कि नहीं, क्या अर्थ है इसका,
हाँ, जो कॉस्ट में एस लगा होगा, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, रहने के जो कॉस्ट हैं, टू हेल्प विद देम, उनमें मदद करने के लिए, यू विल गेट दिस अमाउंट इन पर डीएम मतलब इन अलाउंसेस, अलाउंस के रूप में, है ना। और भी है कुछ?